Assalamu alaikum Aziz Tullaba. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by ComSIT Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. Today we will be continuing our previous chapter, the previous unit, which is called Nation-State System. Before going to the lecture, we will like to review the first lecture. So, in the previous lecture, we discussed about the different elements that were responsible for the growth of nation-state system. And these elements were rise of nationalism, the military movements, rise of ideology, and the extension of nation-state system to non-European states. And we discussed how the rise of nationalism was responsible for the development of nation-state system. Because in nationalism, the people come together. They formed a very strong bond. और जब लोग मुत्तफिक होके एक stronger group बनाते हैं, तो उनकी attachment अपने state के साथ ज़्यादा हो जाती है. And as a result, this group of people always try to get a free state for themselves. Therefore, this was strongly affecting the development of nation-state system. Military movements में हमने discuss किया था कि किस तरह फौजी तहारीक जो कि मुख्तलिफ ममालिक में आती गई, तो उसकी वजह से भी nation-state system मजबूत हुआ. उसकी मेन वजह ये है कि मुहलिक हथियार वजूद में आए. There were deadly weapons. There were different types of bombs. There were submarines. There were fighters. The fighter planes came into being. And therefore, these weapons, which were very dangerous, they made the people of a nation very attached to their government. And they were supporting their governments very much. तो जब एक government को पीछे से support मिलती है, अपने लोगों की support और ताउन हासिल होता है, तो उसकी वजह से वो जो state है, वो काफ़ी मजबूत हो जाती है. So this military warfare and this military movements were also responsible for the strength in the nation-state system. Then the rise of ideology. The ideology which the people believes and which the people follow also was responsible for the rise of nation-state system. Because in ideology, the people get together. Again, they form a strong group. And before that, the people pass through a state of frustration, pass through a state of fear, pass through a state of deprivation. Remember, ideologies जब भी बनती है, तो उससे पहले लोग सफ़र करते हैं, लोगों को तकलीफ़ मिलती है, लोगों की हकूक़ ग़ज़ब होते हैं, और इसकी वजह से फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी एक आइडियोलॉजी मुतय्यन कर देते हैं. And then they struggle together to find their common goals, to find their targets. And the same thing happened with the nation-state system as well. There were different ideologies that developed in the 20th century. और ये जो ideologies हैं, इन्होंने nation-state system को बहुत मजबूत किया. इसी के साथ nation-state system also spread to different parts of the world, especially Asia, Africa, and what was the third state? The third continent? It was Latin America. And as a result, as these countries were getting independence from Europe, they also adopted the European nation-state system. तो बहुत से नए ममालिक वजूद में आए, बहुत सी रियासतें वजूद में आई, which were founded on the dominant nation which was present in that country. Then we discussed the elements of nation-state system. What factors, what elements make a nation-state system? आखिर वो कौन से elements हैं जो कि एक nation-state system को बनाते हैं, जो कि ज़रूरी हैं, जिनके बगैर nation-state system नहीं बनता. उसमें हमने first element sovereignty को discuss कर लिया था, जबकि बाकी तीन रहते हैं जिनको आज हम cover करेंगे. Sovereignty में हमने बताया, हमने discuss किया कि sovereignty is the supreme power in a state. And sovereignty, if it is not there in a state, remember,
it cannot be called a state. This was what was prevailing before the peace of, which peace? Peace of Westphalia. So before the peace of Westphalia, the year is 1648. The states were not sovereign because their powers were restricted by the Roman Church and the Roman Empire. And therefore, these states were not called to be real states. But after 1648, there emerged sovereign states. And as a result, then they were coming under the modern state system. So sovereignty बहुत ज़रूरी है. And sovereignty is the supreme power in a state. It governs the state. Otherwise, the state would be just like a jungle in which there is no law. So the sovereignty directs the people. He established the government, and through that government, all the needs and facilities are provided to the people. Now, we move to the unit, and we will discuss the second element, which is territorial integrity. Territorial integrity relates to the land. आखिर एक रियासत में लोग रहेंगे, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं है, अगर टेरिटरी नहीं है, तो लोग कहाँ रहेंगे? So, in the territorial integrity, we will discuss why it is important. Because the people, the dominant people, the nation, needs a land to live. And therefore, this is one of the important element of a state. अगर एक state में land नहीं होगा, तो वो कैसे वजूद में आएगा? How will you determine a state? And therefore, this is very much needed. A nation needs a state to live. It needs territory. जिस तरह एक family को house की ज़रूरत होती है, एक family को घर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो प्लाट लेते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी बाउंड्रीज मुतय्यन करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं. The same thing happens with the state as well. The people, the group of people now, there are many groups now, so they need a land, and then they make the boundaries, and then they start developing their country and their states, just like a family. So a state is a larger family. Nation-state system will exist if the integrity of the territory continue. अब एक state system तो उस वक्त कायम रह सकता है जब उसकी जो हदूद हैं, जो उनकी boundaries हैं, जो उसकी territory है, वो कायम रहे, वो change ना हो. ऐसा ना हो कि वो अपनी territorial integrity को lose कर दिया. अगर ऐसा होता है, remember the state would lose its status of a state, and therefore it will not to be called a state. So remember, no land, no nation. No land, no state. जब तक land है, so you have a state. Despite the facts that there are many things which also need to be present, but territory is one of the important element. A nation thus protects its own territory and safeguard its integrity. हर कौम चाहती है कि वो जो रियासत है उनकी, जिनमें वो रहते हुआ, उसकी हदूद, उसके जो जोग्राफियाई हदूद हैं, वो बरकरार रहें और बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना हुआ. और उसके लिए वो फारमोस्ट कोशिश करती है. अपनी जितनी भी उनकी एफर्ट्स हैं, जितनी उनकी स्ट्रगल है, वो सारी की सारी इसी इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट के लिए यूज़ होती है कि टू प्रोटेक्ट one's own land. It does not like interference in its internal affairs. एक रियासत और वहाँ के जो लोग हैं, वो कभी अपनी अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं चाहेंगे कि कोई भी स्टेट बाहर से उनके मामलात में दखल अंदाजी करे, उनकी टेरिटरी के अंदर ना आए, क्योंकि उनके अपने मामलात हैं. जिस तरह एक फैमिली है, एक फैमिली अपने अंदरूनी मामलात को खुद डील करती हैं और दूसरे किसी के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करती और नापसंद करती है. इसी तरह स्टेट भी है. स्टेट के जो लोग हैं, they want to solve their problems by themselves. They do not want other peoples from outside to come and solve their problems.
they have the ability to solve their internal problems. And similarly, the people would not like to interfere in the internal affairs of other state. अगर आप खुद पसंद नहीं करते कि कोई आपके स्टेट के अंदर दखल अंदाजी ना करे, तो ऑन द सेम प्रिंसिपल लोग ये भी नहीं करेंगे कि वो किसी और स्टेट के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें. असूल वही है कि जियो और जीने दो. So this means that if you want to live, so you let others live and you don't interfere in their internal affairs. And on the same principle, the state also likes to be protected against external threats. जो बाहर से खतरात हैं वो उससे भी अपने आप को बचाता है, क्योंकि अगर बाहर से कोई हमला होता है, कोई स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं, उनके ऊपर हमला को इन्फोर्स किया जाता है, तो इस सिलसिले में एक स्टेट अपने आप को डिफेंड करता है, अपनी टेरिटरीज को, अपनी हदूद को उसकी हिफाजत करता है. सो दिस इज हाउ a state would protect its territorial integrity. And similarly, they don't have to use force against other nation. They don't have to use the threats and don't have to resort to military strategies against other states. Remember, they have to abstain from the use of force to solve interstate problems. अगर दो रियासतों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, सो दे डू नॉट हैव टू रिजोर्ट टू वॉर. आखिर प्रॉब्लम्स हैं तो जंग नहीं करनी. आखिर जंग क्यों करें? क्योंकि जब बातचीत से मसला हल हो सकता है, अगर अमन से मसला हल हो सकता है, सो वी शुड नॉट रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ फोर्स. सो दिस इज व्हाट अ स्टेट्स शुड डू. दे शुड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज एंड दे शुड अवॉइड द यूज ऑफ फोर्स. दे शुड अवॉइड द यूज ऑफ थ्रेट्स. And similarly, they have to respect international law. They have to respect international boundaries. किसी दूसरे की इन boundaries पे limits नहीं लगानी, उसको cross नहीं करना, but you have to respect the boundaries of other states. If you respect the boundaries of other states, remember, other state will respect the boundary of yours, and therefore there would be a peaceful coexistence. So use of peaceful means to solve the problems, and this would safeguard the territories. अब question ये है कि what are the peaceful means? What are those strategies which you can use to solve the problems very peacefully? तो उनमें कौन कौन से strategies आते हैं? जी, उनमें diplomacy आती है, the use of diplomatic officials. You can make negotiations and observance of international law. जो international law exist करता है उसी के मुताबिक अमल करना, उससे हेल्प लेना, जो international law में principles मौजूद हैं उसको फॉलो करना. So by this you can avoid threats and you can avoid different types of wars. और इसी के साथ you can take the help of international organizations. Remember, अगर problem solve नहीं हो रहा, you can means the state can put the problems in front of the international organization like UN and ask them to solve the problems, and then the world countries can discuss that and can solve the problems if it is really a threat to the world peace. The third element that is necessary for a nation state system is nationalism. नेशनलिज्म को कौम परस्ती भी कहते हैं. अगेन क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनलिज्म. हमने इस टर्म को काफ़ी दफ़ा डिस्क्राइब कर ली है, काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन भी कर लिया है, और अब यहाँ पे एक रिवीजन ही इस टॉपिक की दोबारा होगी. सो नेशनलिज्म इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन एथनिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फाउंडेशंस. एक ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ ऐसे मुश्तरक अक़दार जो कि बेस्ड करती हो नस्ली बुनियादों पे, सकाफ़ती बुनियादों पे और लिसानी बुनियादों पे. सो बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल में, एक लोगों के ग्रुप में
अगर ये चीज़ें मुश्तरक हों कि या तो उनकी उनमें नस्ली बुनियादों पे वो मुश्तरक हों, या वो लिसानी बुनियादों पे मुश्तरक हों, या उनका कल्चर एक हो, तो इस बुनियाद पे वो जो ग्रुप बनता है, दैट्स बेसिकली अ नेशन. And then this nation produces the feeling of nationality. So this nationalism emerged from that group. According to Snyder, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, it's a condition of mind, feeling or sentiment of a group of people living in a geographical area, speaking a common language, possessing a literature, in which the aspiration of nations have been expressed, attached to common traditions and common customs. काफ़ी comprehensive definition है. स्नाइडर कहता है कि नेशनलिज्म इज़ अ कंडीशन ऑफ माइंड, जहन की वो कैफियत है, वो एहसासात हैं एक ग्रुप के जो ग्रुप के अंदर जन्म लेती हैं. आखिर ग्रुप के अंदर ये एहसासात क्यों जन्म लेती हैं, क्यों ये जहनी कैफियत पैदा होती है? इसीलिए कि उनमें कुछ कदरें मुश्तरक हैं. वो कदरें कौन सी हैं कि वो या तो एक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हों, एक साथ रह रहे हों, एक ही फैमिली के बाशिंदे हों, एक ही रीजन के लोग हों, स्पीकिंग अ कॉमन लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज मुश्तरक हो, आपकी ज़ुबान अगर एक हो, रिमेंबर इट प्रोड्यूसेस लव, इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टूवर्ड्स द ग्रुप. एंड अगेन दिस ग्रुप मे हैव अ लिटरेचर, इन ग्रुप का अपना एक अदबी विरसा हो जिसमें इस कौम की सकाफत और उनकी जो रिवायात हैं उनकी अक्कासी होती हो. सो दिस काइंड ऑफ ग्रुप then will produce a feeling, and that feelings and aspirations would be called nationalism. The spirit of nationalism unites the people to strive collectively for common aims and interest. जब ये spirit पैदा होती है, remember it has a very strong binding force. It is a bond. ये लोगों को एक साथ कर लेती है, उनको सीमेंट कर लेती है, उनको एक बॉडी बना देती है. सो द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह उन ममालिक में जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की नेशनलिटीज़ थी, जहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमें थीं, कौन सी रियासतें थीं वो, क्या आप कुछ बता सकते हैं? जिस तरह ऑटोमन एम्पायर, जिस तरह बैल्कन स्टेट्स, जिस तरह रशिया, तो ये वो रियासतें थीं जिनमें काफ़ी ज़्यादा कौमें आबाद थीं, और ये कौमें आपस में मिल किया इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एंड दे स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस एंड फाइनली दे गॉट फ्रीडम. सो नेशनलिज्म इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम. मैनी फ्रीडम मूवमेंट्स आर लेड बाय नेशनलिस्टिक फोर्सेस. Some other examples where nationalism played a great role in freedom and independence are revolution in Russia and then Pakistan. Remember, Pakistan was also got on the name of Islam, but behind that ideology we have Muslim nationalism, क्योंकि मुसलमान एक कौम है और which is different from India, which is different from Hindus. So there are two nations in subcontinent, one is Hindu and the second is Muslim. And as a result of Muslim nationalism, they strived, they struggled together, and finally we got Pakistan. इसी तरह चाइना में भी revolution आया है because of their strong nationalism, and then through their ideology for communism, and then they brought independence in 1949. The third element, which is an element of a nation state system, is legal equality. जब आपको इक्वालिटी का स्टेटस दिया जाए, मसावी दर्जा दिया जाए, क्योंकि स्टेट्स बड़े भी हो सकते हैं, स्टेट्स स्मॉलर भी हो सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लीगल इक्वालिटी? रिमेंबर, लीगल इक्वालिटी मीन्स दैट every state is given the same status. Every state is regarded with respect and no difference is made between the states. The nation state system assumes all states to be equal.
जितने भी स्टेट्स हैं ये इक्वल हैं, इवन कानून की निगाह से भी और अखलाकी लिहाज से भी। रिमेंबर, they may differ in population, they may differ in area, they may differ in economic condition, they may differ in military power, but still all the states are equal in the international world. All the states are enjoying the same respect in the international relations. हालांकि ऐसे ममालिक भी हैं जो कि काफ़ी स्मॉलर हैं, जो कि आलमोस्ट एक शहर जितना पाकिस्तान का एक शहर है उतने भी ममालिक हैं। ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ चंद हज़ार है, जबकि इसके मुकाबले में ऐसे अक़वाम भी हैं, ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनकी पॉपुलेशंस बिलियंस में हैं, जिस तरह इंडिया है, जिस तरह चाइना है। लेकिन दोनों को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। इन इंटरनेशनल रिलेशंस both will be having the same status and they will be having the same vote. If they are voting for any decision, remember their vote would be counted as the same. इसी तरह चाहे एक कंट्री बहुत भी पावरफुल क्यों ना हो और दूसरी कंट्री वीक हो, but still they are equal in the international relations. Equality implies respect for all, because if you treat all states to be equal, this means you are treating all the people to be equal. And this is how you are giving respect to humanity and to people. अगर आपने ये नहीं किया और कुछ स्टेट्स को ज़्यादा मार्क्स दिए, उनको ज़्यादा स्टेटस दिया, उनके वोट को बढ़ा जाना और दूसरे के वोट को हकीर जाना, उसको कोई अहमियत नहीं दी, तो इसकी वजह से नाइंसाफ़ी आएगी, इसकी वजह से नफ़रतें जन्म लेंगी और रिस्पेक्ट का आंसर ख़त्म हो जाएगा। सो इनइक्वालिटी वुड रिजल्ट इन ह्यूमिलेशन, इट वुड रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन एंड वॉर। अगर आपने स्टेट्स को इक्वल स्टेटस नहीं दिया, रिमेंबर इससे ह्यूमिलेशन, ये उनके लिए बेइज्जती हो गया, इससे कशीदगी जन्म ले गया और कशीदगी की वजह से वॉर्स जन्म ले सकती हैं। सो दिस मीन्स if you want peaceful relations on the international level, so this is only possible if you give equal status to all the states, all the countries. Otherwise there would be conflicts and tension. Now there is a very interesting question. Does the UN Charter also recognize it? क्या अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, क्या वो इसी असूल को मानता है? क्या वो इसी असूल को तस्लीम करता है कि सारे स्टेट्स की पावर इक्वल है एंड दे आर गिवन द सेम लीगल इक्वालिटी स्टेटस? जी, यस, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय यूएन चार्टर एज वेल। जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसने भी इसी असूल को तस्लीम किया हुआ है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि वीटो पावर इन यूएन इज़ अगेंस्ट लीगल इक्वालिटी। जिस तरह आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्गन्स हैं, जिसमें एक ऑर्गन जनरल असम्बली है और दूसरा ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबरान को वीटो पावर दी गई हैं। उसके जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनके पास ये पावर मौजूद है। सो दे कैन वीटो एनी बिल विच दे डिसलाइक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई हैं और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। इवन कैन वीटो एनी रिजोल्यूशन इफ जनरल असम्बली हैज़ अप्रूव्ड इट विद मेजॉरिटी। अगर जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की कोई भी कानून या कोई भी बिल मेजॉरिटी से पास कर लिया, तो रिमेंबर सिक्योरिटी काउंसिल उसको भी रद्द कर सकती है। इवन एक भी वोट काफ़ी होगा उसको रद्द करने के लिए। इस पावर को वीटो पावर कहते हैं, जो कि लोगों के मुताबिक, मुफक्किरीन के मुताबिक ये इक्वालिटी स्टेटस के ख़िलाफ़ है, ये उसके असूलों के मुनाफी है। इसीलिए कि आपने 5 स्टेट्स को इतनी ज़्यादा पावर दे दी है,
उनको इतनी स्पेशल प्रिविलेज दे दी है कि वो पूरी दुनिया की ओपिनियंस को रद्द कर सकते हैं। जिसमें अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूँ कि जिस तरह इसराइल की जारहियत फ़िलिस्तीनियों पे जारी दिया और जनरल असेंबली ने उसके ख़िलाफ़ कानून पास किया, बिल पास किया, लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर्स में एक पावर ने उसको वीटो कर दिया, लिहाजा उसकी अहमियत को उन्होंने ख़त्म कर दिया और कोई एक्शन इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं लिया जा सकता। तो ये मुफक्किरीन के मुताबिक ये जो वीटो पावर है, दिस इज़ अगेंस्ट लीगल इक्वालिटी ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम। So you can see that even smaller states, though given equality certificates, have little say in international affairs. आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि जितनी भी स्मॉलर स्टेट्स हैं यूएन में, उन सारों को इक्वल पावर तो दे ही दी गई है, लेकिन यू कैन सी द बैलेंस ऑफ द शिप कि शिप ने एक तरफ टिल्ट किया हुआ है, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि जो 5 सुपर पावर्स एक तरफ हैं, इसकी वजह से यूएन की जो किश्ती है उसका बैलेंस इम्बैलेंस्ड है। सो हाउ वुड वी जस्टिफाई दैट यूएन हैज गिवन इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट्स टू ऑल द स्टेट्स? तो उसका जस्टिफिकेशन हम ये देते हैं कि यूएन में जो जनरल असेंबली है उसमें सारे स्टेट्स बराबर हैं, उसमें जितने भी दुनिया के मेंबर्स हैं, सो ऑल ऑफ देम आर गिवन द सेम वोट एंड देयरफॉर द वोटिंग पावर इज द सेम। तो वहाँ पे वोट में कोई फ़र्क नहीं है, सारों स्टेट्स को इक्वल पावर दी गई है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो 5 मेंबरान हैं, उनको ये इजाफी पावर इसलिए दी गई है या वीटो पावर इसलिए दी गई है क्योंकि दे आर पावरफुल स्टेट्स, दे आर स्ट्रॉन्गर स्टेट्स, और जब वो स्ट्रॉन्गर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, वो दुनिया के अमन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो दुनिया के अमन के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं, और इसी काम को करवाने के लिए उनको स्पेशल पावर दी गई है कि जहाँ पे वो समझते हैं कि दुनिया का अमन या इंटरेस्ट पूरे नहीं हो रहे, तो वहाँ पे वो अपनी इसी पावर्स को यूज़ करके अपने इंटरेस्ट को या दुनिया के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बड़े स्टेट्स हैं और इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा पावर दी जाए ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसे मसले आते हैं, सो दे कैन यूज़ दिस पावर टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम एनी वॉर। सो दैट्स हाउ इट इज़ गिवन द जस्टिफिकेशन फॉर द वीटो पावर। तो लिहाजा हमने देखा कि जो वीटो पावर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल पावर सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबरान को इसलिए दी गई है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो दुनिया के अमन में अपना काफ़ी रोल अदा कर सकते हैं। अब इसके बाद ये नेशनलिज्म के बारे में एक फ्यू इमेजेस हैं विच कैन टेल यू अबाउट द नेशनलिज्म विच वाज इमर्ज्ड इन डिफरेंट नेशनलिटीज़। आपको रशियन रिवोल्यूशन नज़र आ रहा है, साथ में एक तरफ आपको इंडियंस नज़र आ रहे हैं और दूसरे में आपको जापान रिवोल्यूशंस के बारे में एक इमेज नज़र आ रहा है। सो नेशनलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर नेशन स्टेट सिस्टम। नेशनलिज्म के बारे में क़ायद आज़म के भी कुछ अफकार हैं, ज़रा उनको पढ़ते हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, मैं उस गाय को खाना चाहता हूँ जिसकी पूजा हिंदू करते हैं। मुसलमानों की हिंदुओं के साथ किसी मामले में कोई मुमासलत नहीं, सिवाय इस बात के कि दोनों बरतानिया के ग़ुलाम हैं। सो दिस गिव अस द डिफरेंस बिटवीन द Hindus and Muslims, and Jinnah is advocating this because he is convincing the British that Hindus and Muslims are different, and they are so different कि वो जिस गाय को पूजना चाहते हैं तो मुसलमान उसी गाय को खाना चाहते हैं। So you can see the difference in the two nationalities. इसी तरह उन्होंने ये भी फरमाया, हकीकत ये है कि ये दोनों मज़हब नहीं बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ
दो माशरती निज़ाम हैं और मुत्तहिदा कौमियत एक ऐसा ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। एक और जगह पे उन्होंने फरमाया, पाकिस्तान उस दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। So these were a few expressions of Jinnah that were led to the Muslim nationalism, and finally it made a struggle to get Pakistan. Now as we discuss the nationalism, let's discuss what are some of the dangers of nationalism. Remember, अगर nationalism के फ़वाइद हैं तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इसके नुकसानात में एक आपको नज़र आ रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि नेशनलिज्म इज़ एन इन्फेंटाइल डिजीज़, इट इज़ मीजल्स ऑफ मैनकाइंड। ये बच्चों की तरह एक बीमारी है और ये इंसान के लिए खतरा है, खसरा है। So this is what is the view of Einstein. Let's see if there is any other danger of nationalism. Remember, nationalism is very dangerous in respect of a few aspects. Number one, it is responsible for intolerance. अदम बर्दाश्त के लिए ये जिम्मेदार है, क्योंकि जहाँ पे नेशनलिज्म आता है तो वहाँ पे लोगों में अदम बर्दाश्त का मादा पैदा होता है। तो जहाँ पे नेशनलिज्म आता है वहाँ पे उनमें अदम बर्दाश्त का मादा पैदा होता है और जिसकी वजह से लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। It creates hatred towards other nations and ethnocentrism. It is responsible for war and destroying world peace. क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जिन ममालिक में मुख्तलिफ कौमें रहती थीं, तो जब एक कौम में आज़ादी का जज्बा जन्म लेता है, आज़ादी की उमंग पैदा होती है, तो उसने दूसरी कौम के साथ लड़ना होता है। इसी तरह उसको आज़ादी मिलती है। रिमेंबर, आज़ादी प्लेट में नहीं मिलती। आज़ादी के लिए आपको स्ट्रगल करनी होती है, आपको जद्दोजहद करनी होती है। और इसीलिए जहाँ पे नेशनलिज्म आता है तो हर एक अपने आप को बेहतर समझता है दूसरी अक़वाम से, दूसरे कौमों से, जिसकी वजह से नफ़रत पैदा होती है। इसकी वजह से एथनोसेंट्रिज्म पैदा होता है। एथनोसेंट्रिज्म मीन्स कि यू लव योर सेल्फ, यू लव योर कल्चर, अपने सकावत से मोहब्बत करना, अपने ही लोगों से मोहब्बत करना, उन्हीं के साथ अटैच्ड होना और दूसरों को हकीर जाना, जो दूसरे अक़वाम हैं उनको नीची निगाह से देखना। सो दिस इज़ अगेन some of the dangers of nationalism, and as a result, according to Hayes, nationalism is a curse and nothing but a curse. Hayes तो इतने दिल बर्दाश्ता हैं कि वो कहते हैं कि नेशनलिज्म लानत है और लानत है। तो लिहाजा ये नेशनलिज्म दोनों खूबियाँ रखता है, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। So nationalism has both merits as well as demerits. Brogan referred to nationalism as this greatest constructive destructive force. According to Brogan, वो इसको the greatest destructive constructive force कहता है, कि वो इसको तखरीबी भी कहता है, वो इसको तामीरी भी कहता है, कि इस फोर्स के अंदर, ये जो अजीम फोर्स है, इसके अंदर दोनों सिफात मौजूद हैं। इसके अंदर डिस्ट्रक्शन की सिफात भी मौजूद है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की सिफात भी मौजूद है। सो बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नेशनलिज्म। रिमेंबर, नेशनलिज्म इटसेल्फ इज नीदर मोरल नॉर इमोरल। ना तो ये अखलाकी है ना गैर अखलाकी है। नेशनलिज्म एक न्यूट्रल है, इट्स न्यूट्रल by itself. If misused, then lead to tyranny and war. अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो रिमेंबर, इससे टायरनी, इससे शिद्दत पैदा हो सकती है, इससे जंगी जन्म ले सकती हैं। लेकिन अगर आपने इसको पॉजिटिवली यूज़ किया, if used constructively, then it's a source of unity, it's a source of strength, it's a source of community service.
तो ये फिर काफ़ी काम कर सकती है, ये इत्तेफाक पैदा कर सकती है, ये लोगों को काम के लिए उबार सकती है, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के डिफ़िकल्ट काम करवा सकती है. सो इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. तो लिहाजा being humans, we should try that we should use nationalism concept with care, and the state should pursue it with care, because we have to respect other. So we should have tolerance towards others. Otherwise, nationalism can be a very destructive force as well. So this means that it has both the characteristics. With this, we come to the end of this unit, and before we continue to the next unit, let's have a summary of this chapter. In this chapter, we start with the concept of what is a state. Can you recall the information? What is a state? So we discussed that state is comprising of a territory which is occupied by a group of people, and this group of people are living under a sovereign, and they are politically organized. तो स्टेट में आपके पास पीपल होने चाहिए, वहाँ पे टेरिटरी होनी चाहिए, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए अंडर अ सॉवरन. देन दिस वुड बी कॉल्ड अ स्टेट. नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज अ नेशन. और इस चैप्टर में हमने जितनी दफ़ा नेशन, नेशनैलिटी, नेशनलिज्म को डिस्कस किया है, तो और कहीं इतना नहीं किया. सो नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग समथिंग इन कॉमन. What is that something? It could be language, it could be race, it could be blood, it could be culture. So these are the main. And we also discussed that a nation always have a very great goal. और वो जो उनका गोल है, वो जो मकसद है, वो है एक आज़ाद रियासत का हसूल. So a nation, if it is a dominant nation, it strives for a state. It strives for its own state. And according to Morgenthau, a nation needs a state, one nation and one state. In Islam, remember this concept is different, because we have the concept of Muslim Ummah, which is not based on any language, any culture, any ethnic affiliation. इस्लाम में जो कौम बनती है या उम्मत बनती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कलमा और एक नबी और एक अल्लाह पे ईमान रखने से बनती है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी. बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन अ फ्यू टाइम्स that in this course we are studying from Western point of view. So let's come to nation-state system. So in this chapter we also discussed what is nation-state system. So it's a system in which a state deriving its strength from linguistic, ethnic or cultural similarity and possessing a territory governed by a sovereign. So nation-state system is such a system in which there are states, और वो जो states हैं, वो जो रियासतें हैं, वो अपनी मौजूदगी का इजहार करती हैं कुछ बेसिस पे, कुछ एलिमेंट से वो अपनी पावर डिराइव करती हैं. वो कौन सी पावर्स कौन सी डिराइव कर रही हैं? सो द स्टेट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम लिंग्विस्टिक, एथनिक और कल्चरल सिमिलैरिटी, कि वहाँ पे कुछ कॉमननेस हो, लोगों में कुछ कदरें मुश्तरक हों, और उसके बाद वो एक इलाके में रह रही हों अंडर अ सॉवरन. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम मेक्स अ नेशन स्टेट सिस्टम. एंड द नेशन स्टेट सिस्टम इमर्ज्ड फ्रॉम द पीस ऑफ वेस्टफैलिया. वेस्टफैलिया की जो ट्रीटी है, इट वॉज अकर्ड इन 1648, एंड वी डिस्कस द रीजन वाई वॉर दिस वॉर फॉट बिफोर द पीस ऑफ वेस्टफैलिया. ये जंग कितने सालों पे मुहित रही है? सो दिस वॉर लास्टेड फॉर 30 years, and this 30 years the European states were fighting against each other. Why they were fighting? Because there were dynastic rivalries.
There were rivalries between the princes शहजादों और उस वक्त के जो रूलर्स थे उनकी जो आपस की चपकिलिश है to gain more territory, to gain more land, to gain more influence. एक तो उनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट हैं और इसी के साथ there was also a struggle between Catholics and Protestants. ईसाइयों के दो फिरके, the Protestants were trying to decrease the power of the church, क्योंकि उनके मुताबिक चर्च ऐसे अमूर में दखल अंदाजी दे रहे थे और ऐसे कामों में दखल अंदाजी दे रहे थे जो कि प्रोटेस्टेंट्स को पसंद नहीं थे. The church were controlling different aspects of human life and they were giving instruction to the rulers to follow those guidelines. तो ये दीनी अमूर में चर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इनकी हिदायत को बाकी स्टेट्स माना करते थे, इसलिए वो सॉवरन नहीं होते थे. जबकि दुनियावी अमूर में सेकुलर मैटर्स में द रोमन एम्परर वाज द फुल अथॉरिटी एंड ही वाज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू दीस यूरोपियन स्टेट्स. तो इस वॉर के नतीजे में देयर वाज अ पीस व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दिस पीस finally ended the power of the church and the Roman emperor, and as a result independent nation state systems emerged in Europe and every nationality have their own prince, their own king, and they would rule their territory as they like. तो यहाँ से Treaty of Westphalia से या Peace of Westphalia से nation state system का वजूद आ रहा है. इसके बाद हमने डिस्कस किया कि what were those elements that were responsible for the nation state system. इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं लेकिन जो चार इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसमें एक है राइज ऑफ नेशनलिज्म, मिलिट्री मूवमेंट्स, राइज ऑफ आइडियोलॉजी, extension of nation state system to European states. And we also discussed how these factors strengthened the nation state system. नेशनलिज्म में लोग करीब आते हैं, उनमें एक ग्रुप के साथ अटैचमेंट का जज्बा पैदा होता है और ये जो ग्रुप है ये फिर अपनी स्टेट को मज़ीद तक़वियत देता है. इसी के साथ जो फ़ौजी तहारीक हैं जो मुख्तलिफ़ रियासतों में पैदा हुई, वहाँ से जन्म लिया, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग्स हुई, इसी के साथ वारफेयर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई, मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार बनने शुरू हुए, तो जिसकी वजह से लोगों में एक खौफ का मादा भी पैदा हुआ और लोगों की अटैचमेंट अपने स्टेट के साथ, अपने रूलर के साथ ज़्यादा हुई है. तो जब लोगों की अटैचमेंट ज़्यादा हो रही है अपने रूलर के साथ, तो इसकी वजह से नेशन स्टेट सिस्टम मजबूत हो रहा है. राइज ऑफ आइडियोलॉजी, जिस तरह यूरोप में 20th सेंचुरी में काफ़ी आइडियोलॉजीज ने जन्म लिया, काफ़ी नज़रियात ने जन्म लिया और इन्हीं नज़रियात की वजह से नेशन स्टेट सिस्टम मज़ीद मकबूल हुआ, मज़ीद मजबूत हुआ. इन आइडियोलॉजीज़ में नेशनलिज्म सबसे डोमिनेंट है, इसके अलावा इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इसके अलावा कम्युनिज़म है, इसके अलावा कैपिटलिज़म है, इम्पीरियलिज़म है, फाशिज़म है, नाज़ीज़म है, टोटलिटेरियनिज़म है. तो ये सारे वो आइडियोलॉजीज़ हैं जो जहाँ पे पैदा हुई वहाँ के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाया एंड दिस ग्रुप वुड देन गिव एंड सपोर्ट देयर रूलर एज अ रिजल्ट स्ट्रेंथनिंग द नेशन स्टेट सिस्टम. आखिर में वी डिस्कस्ड हाउ द नेशन स्टेट सिस्टम वेंट आउट ऑफ द यूरोप एंड स्प्रेड टू द नॉन यूरोपियन स्टेट्स, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर II there emerged different number of states. The colonies got independence. जब colonies को आज़ादियाँ मिली तो उन्होंने यूरोप से आज़ादी हासिल किया और as a result उन्होंने वही सिस्टम अपनाया जहाँ से उन्होंने आज़ादी लिया. So because the Europe were on nation state system, therefore these colonies were also formed on nation state system. तो जहाँ जहाँ पे जो ग्रुप डोमिनेंट था तो वो ही ग्रुप वहाँ की रियासत की शक्ल इख्तियार कर गई और उसी नाम से इख्तियार कर गई और इसी तरह नेशन स्टेट सिस्टम मज़ीद मजबूत हुआ. इसके बाद हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं. एक है सॉवरेंटी, दूसरा है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तीसरा है लीगल इक्वालिटी
एंड द फोर्थ इज नेशनलिज्म। इसी में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह सॉवरेंटी विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द सुप्रीम पावर, इक़्तिदार आला, उसके बगैर नेशन स्टेट सिस्टम का वजूद नहीं आता। क्योंकि एक रियासत में एक सुप्रीम पावर होगी तो लोग ऑर्गेनाइज्ड होंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बनाएगा और उसी गवर्नमेंट के थ्रू लोगों के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं या नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो विदाउट सॉवरेंटी देयर कुड नॉट बी एनी स्टेट। जिस तरह पहले बताया कि 1648 से पहले देयर वॉज नॉट एनी सॉवरेंटी इन द स्टेट्स because the powers were controlled by the Roman Church and the Roman Emperor, which means the state were not sovereign. लेकिन जब sovereignty होगी तो state बनेगा। sovereignty के बारे में हम ये भी कहते हैं कि the power of sovereign is indivisible. आप उनकी powers को ख़त्म या कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर powers ख़त्म की गई या कम कर दी गई तो जिस एजेंसी ने वो पावर ख़त्म की है या कम की है तो फिर वो सॉवरन है। तो लिहाजा सॉवरन फिर वो नहीं रहेगा जिसकी पावर कम हुई है, बल्कि सॉवरन वो है जिसने पावर कम की है। तो खुद बज़ाते खुद एक सॉवरन पावर्स कम नहीं कर सकता। इसी तरह हमने ये भी बताया सॉवरनिटी का जो कंसेप्ट आजकल के ज़माने में है वो ज़रा सा एडजस्टेड है, ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ में है, इसीलिए कि आजकल के ज़माने में एक एब्सोल्यूट सॉवरन पॉसिबल नहीं है। एक सॉवरन जिसके पास पूरी पावर्स हों और वो हर पावर को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे, आजकल के ज़माने में ऐसी पावर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कि ऑल द स्टेट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे हैव मैनी रिलेशंस, इसीलिए कुछ एडजस्टमेंट की गई हैं। सॉवरन जब एक मुआहदा करता है, जब ट्रीटी करता है, तो वो अपनी पावर्स को खुद कम कर लेता है, क्योंकि उसने उस मायदे की पासदारी करनी है और उसमें जो शक्की गिवन है उसी को फॉलो करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना। विच मीन्स द पावर्स आर एडजस्टेड, दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। इसी तरह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी मौजूदगी की वजह से भी सॉवरेंटी की पावर्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक स्टेट को अपनी मर्जी नहीं करने देता, बल्कि उसको मजबूर करता है कि वो इंटरनेशनल लॉ के असूलों को पर का फरमा हो और उसकी पाबंदी करे। इसी तरह वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, जो कि एक सॉवरन को अपनी मर्जी नहीं करने देता, बल्कि वो एक राय आमा को देख के उसी को फॉलो करता है। सो देयरफॉर इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन टुडेज वर्ल्ड, द सॉवरन हैज़ टू गो विद सर्टन एडजस्टमेंट्स, it has to go with certain compromise in order to have a good kind of government. इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया अबाउट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कि किस तरह टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ अ नेशन स्टेट सिस्टम, क्योंकि विदाउट एनी लैंड देयर कुड नॉट बी एनी नेशन, देयर कुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट बीइंग सेट। सो देयर every nation needs a land and it has to protect its land, because if the land is not protected, remember the state would vanish, the state would be destroyed, it would be damaged. इसीलिए एक रियासत और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो पूरी कोशिश करती है कि अपनी रियासत का दिफा करें, उसकी जो जोग्राफियाई हदूद हैं उसकी पासदारी हो, उसके रिस्पेक्ट हो। इस सिलसिले में a state do not want to be interfered from outside. It doesn't want internal interference in its internal affairs. And similarly, a state would not interfere in the internal affair of other states. इसी तरह the states should not go for forceful means of settling disputes. अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई मसाइल हैं, कुछ पेचीदगियाँ हैं, तो उनका हल जंगों में नहीं है, बल्कि उनका हल बातचीत में है। So the states should come together and they should mutually talk to each other and they should try to solve the problems through peaceful means and through peaceful negotiations. इसके बाद हमने लीगल इक्वालिटी को डिस्कस किया कि लीगल इक्वालिटी मीन्स कि ऑल द स्टेट्स
are given equal powers. There should be no discrimination between the states. अगर स्टेट बड़ा है या छोटा है, या पावरफुल है या नहीं है, या उसकी पावर ज़्यादा है या उसकी पावर कम है, in all these things you should look at the only legal status, that all the states are equal and they should not be having any difference. But the question is that, will the Security Council also obeying on the same principle? Is it also following the same principle? कुछ लोगों के मुताबिक कहते हैं कि नहीं है, हालांकि according to UN Charter all the states are equal, they are given equal status. But then the veto power is taken as one of the element, one of the factor which is against the legal equality. But the justification for it is that the Security Council members are given this veto power only that they, through their influence, they can solve the problem of the world and they would look for different matters. जिस तरह एक घर में सारे लोग तो बराबर होते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं और इसलिए उनकी पावर्स ज़्यादा दी जाती हैं ताकि वो घर के जितने भी मसाइल्स हैं या जितने भी मैटर्स हैं उसको सही तरीके से सॉल्व कर सकें. So this means that these Security Council members are given this power only with this responsibility that they should be looking after the world peace, because they are major powers and therefore having major responsibilities and therefore should be given more powers. In the last we discussed nationalism. This nationalism concept, is coming again and again in this chapter because it's a very important element of nation-state system. It helped in the development of a state, but it is also one of the important element of nation-state system. क्योंकि नाम ही है नेशन स्टेट सिस्टम, तो एक स्टेट में नेशनलिज्म होगा, वहाँ पे एक नेशनैलिटी होगी, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, तो तब आपका नेशन स्टेट बनेगा. वरना विदाउट नेशनलिज्म देयर कुड नॉट बी एनी स्टेट. Now the nationalism is the feeling of attachment, and this feeling of attachment is produced because there is something common in the people. This commonness is based on language, culture, or blood, ethnic affiliations, and based on this we have stronger groups being formed. तो जब ये strong groups बन जाते हैं एक nation में, तो ये nation then tries to make a state which is called the nation-state system. So nationalism produces unity, it produces strength, it combines the people, it makes them one group, and as a result this is one of the dominant factor. Now some thinkers also say that nationalism also has some negative aspects. It also has some demerits. क्योंकि डिमेरिट्स में इसमें ये है कि अगर एक ग्रुप में नेशनलिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसके मुखालिफ में दूसरा ग्रुप भी है जिसमें इस ग्रुप के खिलाफ नेशनलिज्म प्रोड्यूस होती है, बिकॉज द अदर ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, द अदर ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट कल्चर, और इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट स्टॉक, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट ब्लड. जिस तरह बरसगीर में हिंदू और मुस्लिम थे, तो इसकी वजह से दोनों के बीच में नफरतें जन्म लेती हैं, दोनों के बीच में कदूरतें बढ़ती हैं, एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट it may result and it may produce tension, it may also produce wars. Therefore nationalism is also a curse. ये एक लानत है और ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है. ये सोसाइटी में जितनी भी जन्म लेने वाली बीमारियां हैं उसकी जड़ है. इसकी वजह से दुनिया ने काफ़ी जंगें देखी हैं. World War I, World War II, all these were fought because of the strong nationalism in the Europe. तो लिहाजा नेशनलिज्म फिर क्या है, इसके नेगेटिव भी हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, दोनों एस्पेक्ट मौजूद हैं. ये डिपेंड करता है स्टेट पे, हाउ टू यूज इट. इफ इट इज यूज पॉजिटिवली, it's a source of strength, it's a source of unity, it's a source of brotherhood. But if it is used negatively, remember it creates hatred, it also creates war. So the state should pursue it with great care. With this, we
come to the end of this revision as well. There are some review questions. The first question is, how a nation-state system originated from 30 years war. Second is, trace the development of the nation-state system since Treaty of Westphalia. इसमें आप वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है तो उससे के बाद जो डिफरेंट फैक्टर्स ने उसको मुतासिर किया है, जिसमें हमने वो 4 एलिमेंट डिस्कस किए थे. सो दे आर basically forming the answer here, and describe the concept of sovereignty and its absolute sovereignty possible in today's world. We also discussed this as well, and we also discussed the main elements of nation state system as well. So this was all for today's lecture. I hope you have understand. Thank you very much. Allah Hafiz.